Hello everyone, and very good evening, everyone. Today we have our star performers here who have actually cleared their CMA journey, and right now they are a qualified CMA. Okay, so welcome on this particular session today, today's evening. सबसे पहले I would like to welcome Akshita Gupta, AIR 7. A big round of applause for the star performer Akshita Gupta, All India rank 7 in CMA final is definitely a big achievement according to me. And we have today, yes, and we have today also AIR 25, All India ranker Aryant Jain, AIR 25. Big round of applause for Aryant. Thank you, ma'am. And also we have on the dice today वैष्णवी वैश, जूही जैन एंड शिबाराम साहू, जिन्होंने बस कुछ मार्क्स के लिए अपना रैंक जो है अचीव नहीं कर पाया, बट डेफिनेटली their marks, listening their marks will just mesmerize you, because they have scored more than 80 plus in many subjects including my SPM BV. Juhi has actually bagged 83 marks in SPM BV subject. Shibaram has actually bagged 84 marks in SPM BV, and Vaishnavi has also scored exemption, ठीक है, more than 17 SPM BV. So I'm really very much privileged and honored to have all my students here on the same dice sharing their valuable inputs today. So today I'm sitting with the plethora of all the experts here, okay, who are definitely going to enlighten you guys with their deeper knowledge and their strategies and their secret recipes and ingredients how to crack the rank. ये आज आपको मोटिवेट करने आए हैं, ये बताने के लिए कि रैंक कैसे सिक्योर करना चाहिए and what are the strategies they have followed at their exams time. So सबसे पहले I would like अक्षिता गुप्ता. अक्षिता प्लीज आप मुझे बताओ कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि did you had any idea कि आपका रैंक आने वाला है, अक्षिता? नो मैम, आई डिड नॉट हैड एनी आइडिया. मेरे को बस यही था कि पास होना है, आप पहले अटेम्प्ट में बनना है सीएमए. दैट्स ऑल आई वांटेड, बट नेवर ड्रीम्ड ऑफ रैंक. आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ. वही है बस. अब मेरे को मेरी तरफ से फुली 100% देना था, जो मैंने दिया. वेरी वेल सेड. मतलब दैट मीन्स यू आर वांटिंग टू से आप अपना एफर्ट्स देते जाओ, रिजल्ट की चिंता मत करो. यस मैम. राइट. व्हाट अबाउट यू अरियंत? वर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस रैंक? No, ma'am, absolutely not. Like, even though I had a rank in my inter as well, but I never expected any of the times. I was just like, let's just score the highest that we can and learn the best that we can. Whether we get a rank or not, तो बाद में देखेंगे जो होगा. So yeah. Very good, very good. It seems Aryant is chilling on a Goa beach after just clearing his CMA exams. And okay, very nice. Just joking, it's a background, okay? I think they must be, now very much haunted about their job placement, right? So have you applied for the campus placement, everyone here? No ma'am, Yes, not ma'am. yet. Yes, Juhi, go ahead, please. Yeah, actually, I wanted to say that I haven't cleared CMA final. Like, I have cleared Group 3, but not Group 4 at the moment. Okay. I think you said vice versa. No, ma'am, I have cleared Group 3 and You not have cleared Group 4. 3 or Group 4? Group You 3, you scored how much in SPM BV? 83. So that is in Group 4, dear. Yes, ma'am, but I got exemption in that, but didn't clear Group 4. Okay. Oh, you have given both the groups. You scored 84 Yes, there, but you did not clear your Group 4. yes. Oh my God. Hats off to you, Juhi. मतलब ऐसा क्या हुआ? बाकी पेपर्स क्यों नहीं क्लियर हुआ, जूही आपका? मैम CFR बिल्कुल अच्छा नहीं गया था, तो उस वजह से. Okay. No worries. You are definitely going to, just clear it in the next attempt. You are a star performer. Yes, मतलब 84 yes. by fluke आना is not possible. So definitely you have something in you which made you back 84 score. Superb. So over to you, Shivaram. Shivaram, आप मुझे बताओ कि what strategies would you like to share with your juniors so that they can get that motivation कि आपका तो 84 आया, तो ये 84 मार्क्स इतना ज्यादा है, कैसे बच्चों को आप मोटिवेट करोगे so that they can also score that? एक्चुअली मैम, मेरा ग्रुप 3 जो है वो जनवरी 2023 में ही क्लियर हो गया था. वो भी आपसे ही लिया था, कॉम्बो लिया था ग्रुप 3 का, ऑल दी सब्जेक्ट. ग्रुप 4 भी मैंने कॉम्बो ही लिया था. वो भी इस टर्म में क्लियर हो गया. और मेरा जो एसपीएम भी है, मैंने थोड़ा आपका जो डायरेक्शन था वो मैंने फॉलो किया, उसके वजह से आ गया. मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं एग्जाम्शन श्योर लाऊंगा, बट एक्सपेक्ट नहीं किया था 84 आ जाएगा. Very nice.
So what are the three, tips you guys would like to give to our students which can keep them motivated? Because final clear करने के बाद ना मतलब आपके अंदर वो confidence तो आ ही गया होगा. So what was the feeling before clearing the final and what is the feeling after clearing your final exam? So R या par वाला situation. So please communicate that, feeling right now with us. Yes, Akshita, please go ahead. Vaishnavi, Akshita, please speak something. Ma'am, I would like to quote that I have secured 47 ranks all over India, 47 ranks. Very good. A Or, big round of it- applause. I just missed it. Sorry, was- Vaishnavi. Sorry, It's sorry. okay, it's okay, Extremely ma'am. sorry. It's totally fine. It's totally fine, ma'am. I have cleared my CMA finals in 4th attempt. It was my 4th attempt. So, and I got AIR. So मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं था कि that I'll clear in such a good rank, मतलब 47 rank. एंड मैम मेरा ये कहना है कि अगर आप मुझसे अगर पूछो कि व्हाट इज माय, जो मुझे लगा कि पिछली अटेम्प्ट से लेके अब की अटेम्प्ट में मुझे क्या डिफरेंस नजर आया, कि मैम अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पे फेथ जरूर रखना चाहिए कि कोई और रखे चाहे ना रखे, लेकिन अपने आप पर फेथ होना चाहिए. दूसरी थिंग कि आप हर दिन, आप एक दिन में आप सोचो कि आप 100% अचीव कर लो, ये पॉसिबल नहीं है. कि आप सोचो कि आपको अगर, जैसे अगर आप सुबह उठते हो तो आप सोचते हो कि नहीं 5 बजे उठ जाना, ठीक है उठना चाहिए सुबह, अगर कोई सुबह पढ़ रहा है तो, लेकिन आप सोचो कि 5 बजे आप उठ जाओ, तो इट्स नॉट पॉसिबल. कि आप धीरे धीरे करके स्टार्ट करो ना, धीरे धीरे 1% हमेशा, मतलब जैसे अगर 1% भी हर एक दिन अगर आप टारगेट लेके चलते हो, तो आप 1% अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, तो लास्ट में आप कुछ ना कुछ अपने अपने पर रिजल्ट पाओगे, मुझे ये लगता है. और एक डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में. जो मुझे ऐसा लगा कि आप एक कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करते हो, तो आपको वो जो आप चाहते हो वो आपको जरूर You'll मिलेगा. achieve it definitely. हाँ, ये Vaishnavi, hats off to you. You are definitely going to inspire millions of people here because I know students complaining ki, and as of now, you guys know the results have been disaster this time. Ma'am, So 6%, people are yeah. just, sobbing over their, guilt is not getting over, their tension is not getting over, and they are full of frustration. So you Yes, are a ma'am, Jeeta yes. Jata example. You are an epitome of motivation who have given the 4th attempt and you have secured AIR 47. So it is a Ma'am, it was tremendous. unexpected. I wasn't expecting मुझे कोई रैंक आएगा, because शाम को जब लिस्ट आई तो ऐसा हुआ कि मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि आप तू रैंक चेक कर. मैंने कहा कि रैंक तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज क्योंकि अब तक रिजल्ट काफी कम गया था. मेरा Very bad. एग्रीगेट 408 आया था. Yes. मैंने कहा 408 में तो रैंक तो इम्पॉसिबल है, बट फिर भी मैं चेक करती हूँ रैंक लिस्ट. तो मैंने सबसे लास्ट से स्टार्ट किया कि मैं कितना पीछे हूँ. मैं ये चेक कर रही थी कि मैं कितने पीछे हूँ उस बंदे से, कितने मार्क्स से पीछे हूँ कि मुझे रैंक नहीं आई होगी. क्योंकि मेरा शाम, मतलब जब से मेरा रिजल्ट आया तो मुझे हमेशा लगता था कि काश रैंक आ जाता. और फिर उसके बाद मैंने पीछे से देखा, मैंने कहा, मेरी सिस्टर थी वो सीए फाइनल्स में, मैंने कहा उससे कि यार इसके मार्क्स मुझसे कम है, इसका मतलब मुझे रैंक आई है. सीरियसली. फिर उसके बाद पता चला, फिर एवरीबॉडी वाज लाइक एनीथिंग कि रैंक आ गई. बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे. So proud of you, Vaishnavi. So where are you from, Vaishnavi? आई एम फ्रॉम प्रयागराज मैम. Okay, जबरदस्त जबरदस्त. मतलब you are actually मतलब the remedy. मतलब अभी जो बच्चों को चाहिए ना, आपसे मिलेगा भी. मतलब they will be actually flabbergasted by knowing कि ये जो बंदी है इसने 3 attempt दिया, उसके बाद भी she has that guts, she has given the exams again and she has secured rank. So right एंड now मैम you're going to, एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, सॉरी, कि मैम मैंने ना जितने भी अटेम्प्ट्स थे अपने, तीनों अटेम्प्ट जो पास्ट के अटेम्प्ट्स थे वो मैंने बोथ ग्रुप पे दिया था. और मतलब जो जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगी कि आप ना बोथ ग्रुप देने की कोशिश करो. क्योंकि क्या होता है ना, मेरा एक ग्रुप में 182 आई थिंक आया था, थर्ड ग्रुप में 182 है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, 182 और 184, एंड सेकेंड ग्रुप में 226 था. अगर मैंने सिंगल सिंगल दिया होता तो ग्रुप 3 नहीं निकलता, वो सेट ऑफ हो गया. तो इससे मेरा बोथ ग्रुप भी हो गया क्लियर, एंड rank भी आ रैंक भी गया. आ गया. So this is we keep on pitching
from decades. आप दोनों ग्रुप दो, रैंक लेकर आओ, रैंक का चांसेस है, सेट ऑफ का प्रोविजन है. So proud of you, Vaishnavi. Thank you, ma'am. Aryan, please go ahead and share your journey. आपको मतलब कि कैसे आपने पढ़ाई की यहाँ पर, और what were your strategies and how to handle the mental pressure which is always, you know, on us, and that performance pressure to secure better marks in the examination. So how did you maintain a balance for that, and how was your journey in the entire CMA course? So, and how you're feeling today, please. Ma'am, all that I can suggest to the current aspirants is that you must like take it as a marathon, not a sprint, right? You're gonna have to study consistently over a long period of time. It's okay if some days you're not able to study, if you go partying someday, it's fine. Arden nahi ho pata, but the point is that you keep on consistently up, like studying, maybe for 2 hours, 3 hours, 4 hours, whatever you can manage. Because at the end of the day, there's a lot of time for you to prepare after intermediate to the finals exam. So it's better that you take your time with it. And always remember that at the end of the day, तुम सीखने के लिए कोर्स कर रहे हो, तो always see it as a learning opportunity, not as a burden कि यार ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा अपने को तभी ये डिग्री मिलेगी or something like that. It's a learning opportunity, so you should take it as that. That's all I can say to like the current aspirants as of right now. And as far as the experience, after getting a rank, obviously it's a very On amazing. cloud nine. Yeah, like everybody's really happy. सब रिश्तेदारों के call आ रहे होते हैं, and friends are really happy. And I must say I couldn't have done any of that without support from my family and my friends and all those who are with me, and even those who are not with me as of right now. Yeah, a big shout out to them. So yeah. So proud of you, Aryan. So proud of you. Now over to you, Juhi. Juhi, please, you explain me how did you manage to, you know, keep the balance between that articleship that you must be doing right now and your academics. दोनों के बीच में balance कैसे रखा आपने? And what is मैंने that level पहले of pressure that you have been through? मैंने ट्रेनिंग पहले की थी, लाइक तब पढ़ाई मैंने ज्यादा नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया था. बट पहले मैंने 1 ईयर पूरा ट्रेनिंग में टाइम दिया था. मैंने IUCL से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की. Very तो good. पहले वहाँ IUCL से ट्रेनिंग. practical training is Yes. amazing. उसके बाद बेटर फ्लो मिला पढ़ाई में. उसके बाद पढ़ाई शुरू की, उसके बाद अपीयर किया एग्जाम में. Very good, Juhi. Akshita, please, you explain me how is the feeling right now? Single digit rank AR7 is absolutely commendable, and how you are feeling right now, and how your parents were actually feeling when you revealed that you have secured a rank. ओके मैम. सो जैसे ही मैंने सबसे पहले तो मैं रिजल्ट देखा था तब मैं सो रही थी. Oh my मेरी God. मेरी बहन का कॉल आता है कि है ना वी वर प्लानिंग टू गो गुड़गांव. तो है ना मैंने कहा था रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, देखा जाएगा अगर आएगा तो उसने फोन करके मुझे सीधा यही कहा कि तू गुड़गांव आ रही है. मैंने कहा ऐसा क्यों? फिर मैंने है ना नींदों में थी मैं, फिर मैंने एकदम से रिजल्ट देखा. It was around 5:30 a.m. in the morning when the results came out. और 6 ऐसे ही कुछ था. I was live at that time. Had you followed the channel, you must have got the notification. I was live that time in the morning also. Was off that time, so I didn't get any notification. I got to see it later on. So मैंने देखा congratulations. I was on 7th heaven that time. मैं कहा यार ये क्या हो गया. पर उसके बाद देख के my reaction was very subtle. फिर 2 बजे करीब शायद रैंक लिस्ट आई, तब तक मैं सारे बात ही कर रही थी. उसके बाद रैंक लिस्ट आई. मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी रैंक आएगी. मैं बहुत ट्राई कर रही थी रैंक लिस्ट आए, पर अपलोड ही नहीं हो रही थी. तो है ना माय फ्रेंड कॉल्ड भी कि गेस कर कितनी रैंक आई होगी. तो मैंने कहा होगी AIR 30, ऐसा कुछ 30 की लाइन में. लेकिन इंटर आई आल्सो गॉट AIR 31. तो मैं देखा वही लाइन है. तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है. तो मैंने कहा 20 की लाइन में. वो बोले नहीं. तो मैं आई वाज इन टीयर्स दैट टाइम कि मैंने कहा अच्छा मैं टॉप 10 में तो हूँ. देन आई गॉट टू नो आई एम AIR 7. तो बस आई गॉट टीयर्स दैट टाइम. आई वाज क्राइंग एंड क्राइंग क्योंकि मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था. बीइंग अमंग टॉप 10 एंड बीइंग राजस्थान सेकंड टॉपर वाज priceless moment for me. So my mother was a teacher, is a teacher. So she was in school that time. So when she came back home, I told her and she was also in tears. That moment was priceless.
I can absolutely relate that moment because even in my finals I scored air 3, so I can just relate with you how the mothers feel, how the parents feel, how you feel. It's actually priceless. Matlab, there is no comparison of that moment. You cannot actually express it in words. It can only be felt by you. Words will definitely fall short to express that feeling. Yes, I would also like to share some tips which I thought are beneficial to please me. go ahead. कि सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सेम स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। जैसे मैंने खुद ने लॉ में ऑब्जर्व किया कि मैं लॉ पढ़ती थी, मैं रिवाइज करती थी, जब तक मैं बुक खोल के देख रही हूँ मुझे सब आता है। जैसे आई ट्राई टू राइट और मैं कहीं ना कहीं लैग कर रही थी, तो आई थॉट इंस्टीड ऑफ रिवाइजिंग आई ट्राई टू रिकॉल इट। जहाँ बुक बंद करके मेरे चीजें खत्म हो रही थी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूं क्या, तो मैंने रिवाइज करना ही बंद कर दिया। मैं जब पढ़ती थी मैं अपनी बुक को क्लोज कर देती थी, फिर मैं रिकॉल करती थी अपने माइंड में, अच्छा आज मैंने क्या किया। इंस्टीड मैं बुक खोल के पढ़ूं, क्योंकि वहां मुझे कोई दिख नहीं रहा था फायदा। बुक जैसी बुक खोलते थे सब कुछ आता होता था, सब बच्चों के साथ ऐसी होता है शायद लॉ में। और लेकिन फिर मैं बुक बंद करके रिकॉल करती थी और वो मुझे सच में हेल्प किया। और बाकी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे मैं उसमें क्वेश्चंस को ही रिमार्क्स देती थी कि ओके यू आर गुड, यू आर एवरेज, यू आर सो इजी, ऐसे करके। तो उससे क्या होता था, जब मैं नेक्स्ट टाइम देखती थी तो मुझे क्लियर रहती थी इमेज कि हाँ ठीक है, इसको नहीं देखना है, मुझे इस पे फोकस करना है। और उसमें भी मैं वही चीजें हाईलाइट करती थी जिस पॉइंट में मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत आई। क्योंकि इंटर में मुझे इतना आइडिया नहीं था, जब मैंने इंटर दिया था फिर मुझे पता चला भाई से पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है और आपका पहला पढ़ाई काम आएगा। तो इसलिए मैंने पहले से स्ट्रेटेजी बना रही थी कि मैं वही पॉइंट्स हाईलाइट करूंगी जो मुझे उस दिन पढ़ना है। और ये भी मैं ना जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी फोकस कराना चाहूंगी कि थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ के जानी चाहिए। मैंने इंटर में भी ये सोचा था कि मैं थ्योरी तो अटेम्प्ट करूंगी नहीं, वो जो लास्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो अटेम्प्ट करना ही पड़ जाता है, या तो टाइम का शॉर्टेज आ जाता है या फिर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो उस टाइम मेरे को उसमें बहुत गंदा डीमेरिट था वो मेरे लिए। तो इस बार मैंने ना थोड़ा सा थ्योरी पे फोकस भी किया, पास्ट स्कैनर से उठा लो, ट्रेंड Very ऑब्जर्व good. कि क्या You should चल रहा not है। ignore theory. We always keep on saying our student don't ignore theory. यस मैम। Even for practical subjects, theory are important. और एक्चुअली में जो एग्जाम्स थे उसमें थ्योरी बहुत काम है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे थे प्रैक्टिकल या टाइम का शॉर्टेज हो जाता था कि आप वो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे। तो थ्योरी वाज अ बेटर ऑप्शन दैट टाइम। और मुझे जो चीज लगी कि इनिशियली आप थोड़ा धीरे चलो, मतलब कोई स्पीड में भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना आप बेसिक्स पे फोकस करोगे, जितना धीरे आप इनिशियली चलोगे, बाद में फिर वो होगा कि आपको है ना चीजें समझने में ज्यादा आसानी होगी। फिर बाद में आप प्रेशराइज होते हो, यार ये छोड़ दिया था जल्दबाजी के चक्कर में, अब ये ठीक से करना पड़ेगा, और बाद में इतना टाइम नहीं होता है। अगर आप इनिशियली धीरे चलते हो तो जब एग्जाम का टाइम आता है तो आप सब नहीं पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो छूटता ही है। तो उस टाइम वो पहले का पढ़ाई काम आता Very good. That means basically smart study should also be done. मतलब है। syllabus is very humongous. You have to plan आपको कैसे पढ़ना है. You should study smartly और गधा खटनी नहीं करना है. Basically, यस right? Smart study. So yes, very well said, Akshita. You have actually shared valuable feedback, valuable inputs for our juniors, which they can take as a recipe, I can say, for securing rank. Now, over to you, Shibaram. Where are you from? Ma'am, I am from Odisha. You're from Odisha. Very good. Okay. So, what are your plans right now? Where you are looking for a job? Matlab, you are looking for a job right now, or you're going to start your own practice in near future? What are your plans? मैम मेरा प्लान है कि मैं कैंपस में जाऊंगा। मैंने फॉर्म फिलअप भी कर दिया है। चाइना में, चेन्नई में मैं जाऊंगा। वेरी गुड शिवा, वेरी गुड। शिवा, आप अपना जर्नी शेयर करो। MEPL के संग आपका जर्नी कैसा था? डिड यू एंजॉय वाचिंग द क्लासेस, लेक्चर? SPMBV का लेक्चर आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा पढ़ाई में? और मतलब क्या लेक्चर्स वगैरह देखने से जो है, एक चीज मुझे और जानना है, क्योंकि बेसिकली फाइनल के जो बच्चे हैं वो रिकॉर्डेड बैच ज्यादा लेते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट। तो हाउ डिड यू मैनेज टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन? मतलब वो किक कैसे आता था कि उठना है, लेक्चर्स देखना है हमें अच्छे से, दैट कंसिस्टेंसी, मतलब वो कैसे आया आपके अंदर? जब मैं तो लाइव तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं जॉब भी करता था, मैं आर्टिकलशिप करता था। तो दिन भर मैं आर्टिकलशिप में चला जाता था और आने पर रात 9 बज जाता था कभी कभी।
कभी 6 भी बज जाता है, कभी 10 o'clock भी हो जाता है। तो आने के बाद मैं रिकॉर्डेड बैच ही देख सकता था। अब रिकॉर्डेड बैच में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, बिकॉज आप डिस्ट्रैक्शन इजीली हो जाते हैं क्योंकि आप टायर्ड होते हैं, दिन भर जॉब वर्क करते हैं। बट आपका क्लास जो एनर्जी रहता है थैंक वो यू। भी निकल जाता है। और मैं एसपीएम बीबी में कहना चाहूंगा कि आपने जो जो की पॉइंट किया था मैंने अंडरलाइन किया था, और मैंने एनालिसिस किया था कि फॉर प्रीवियस पेपर मैंने एनालिसिस किया था। वहां पर मैं देखा था कि 2-3 क्वेश्चन आर रिपीटेडली रिपीट होता है हमेशा। पैटर्न फॉलो जैसे करता है कि इंस्टीट्यूट। जैसे कि डुपॉन्ट एनालिसिस, ऑल्टमैन जेट स्कोर, और मर्जर एंड एक्विजिशन में तो श्योर आता है एक क्वेश्चन। वैसे ही मैंने, और जो प्रैक्टिकल है मेरा, तो प्रैक्टिकल में ऊपर हैंड है हमेशा। तो मैंने हमेशा रेटिंग देता था 3 में से। इन केस में 1 देता था तो मैं कभी नहीं देखता था मैं एग्जाम के पेपर। बट जो 3 में से 3 स्टार देता था मैं हमेशा देखता था। Very good. So I liked, even Akshita highlighted that point कि self analysis करना बहुत जरूरी है. Even Shiba highlighted that point कि आपको पता होना चाहिए आपके लिए कौन सा easy है कौन सा tough है, because just the day before your exams it is impossible to revise each and every sum. तो आपको पता रहता है हमें exams के पहले कौन सा sums revise करके जाना है. That is very nice. So वैष्णवी, you tell me, revision के लिए जो है ना हमें कितना time spend करना चाहिए? कितने दिन पहले तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, मैम ट्यूशंस एंड ऑल, सो दैट लास्ट में वी जस्ट फोकस ऑन रिवीजन? मैम मेरा तो ऐसा था कि मैंने 3 अटेम्प्ट दे दिए थे, तो मेरे तो क्लासेस वगैरह मैंने तो एसपीएम बीवी के लिए आपका यूट्यूब लेक्चर्स बहुत प्रेफर करा है कि एसपीएम पार्ट का, है ना। मैराथन तो भी मैंने मेरा लिया है 2 बार, क्लासेस वगैरह का 3 कुछ बार। ऐसा इशू। हाँ। एंड मैम मेरा रिवीजन का ऐसा है कि नंबर ऑफ रिविजन्स मैटर करते ही नहीं है मेरे हिसाब से। नंबर ऑफ रिविजन्स नहीं मैटर करते हैं, मैटर करते क्वालिटी ऑफ रिविजन। वेरी आप गुड। 5 रिविजन या 4-5 रिविजन करके आप जाओगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप वो लैंग्वेज आप लिख लोगे भले ही, लेकिन आप ना कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे ज्यादा फोकस, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और मैम अगर आप 2 रिवीजन भी करके, मैंने अपने इस बार सिर्फ 2 रिवीजन करके मैं गई थी, बट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी डिफरेंस यही था कि मेरा अब की बार कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ज्यादा था। मैंने पिछले अटेम्प्ट में 4-5 रिवीजन में करके गई, लेकिन वो ये है ना कि मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जब तक आपको नहीं है, कॉन्सेप्ट पे कमांड नहीं है, तो वो आप कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, ये बात अक्षता ने बिल्कुल सही कही कि आपको स्टार्टिंग जो है वो आप स्लो करो, फिर बाद में धीरे धीरे करके पेस बनाओ, तो वो ज्यादा बेटर है, वो अच्छा है वो चीज। बस। यस, वेरी वेल सेड वैष्णवी। ओवर टू यू जूही। जूही, आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा यहाँ पे पढ़कर एमईपीएल में, और फ्यूचर के आपके क्या प्लान्स है अभी, और मतलब क्या कभी ऐसा लगा लाइफ में कि अब बस नहीं करना है हमें ये कोर्स? कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन यू हैव बीन थ्रू जूही? यस, which is quite normal for a professional, I think. Even if you're a rank holder, does not matters. ये अटेम्प्ट भी मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी दोनों ग्रुप्स दिए थे तो क्लियर नहीं हुआ था। ये अटेम्प्ट भी सेकंड था, एंड एग्जाम्स इतने अच्छे नहीं हुए थे जितने मैंने सोचा था, तो मैं बहुत डिप्रेस थी सच बताऊं तो, कि पता नहीं होगा या नहीं। तो एक ग्रुप निकल गया एंड एसपीएम बीवी में भी इतने अच्छे मार्क्स आए, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड राइट नाउ। एंड एमईपीएल में तो मैंने 5 सब्जेक्ट्स एमईपीएल में ही लिए, एंड मोहित सर के क्लासेस तो वन ऑफ द बेस्ट होते थे। एंड मैम आपका क्लास का भी मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगी। मतलब एसपीएम बीवी एक ऐसा सब्जेक्ट था, सब मतलब बहुत स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं उस सब्जेक्ट को, इतना इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें। और जैसे आपने कहा था कि आप फेवरेट सब्जेक्ट बना दोगे उसको, इंडीड एक वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स हो गया था मेरा। आपने जिस तरह से एसपीएम पढ़ाया, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट उसमें इतना था, उतने अच्छे से पढ़ाया कि कुछ भी मतलब बाय हार्ट लर्न नहीं करना पड़ा। इतने अच्छे से आपने सब कुछ स्टोरी से कनेक्ट करके दिया, वो अभी भी मतलब माइंड में पूरे अच्छे से फ्रेश है, तो वो बहुत अच्छा था। Yes, the practical approach. Matlab, I tried to, Yes, incorporate all my practical knowledge in the SPM paper so that the students don't get bored of the theory paper. yes, But BV was practical, right? BV is fully yes, practical. There's no theory in BV. यस मैम। लेकिन बीवी भी इतने अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया, लाइक
जब रिवीजन करने का टाइम आया तो मैंने क्या किया, सब ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैं कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लेती थी, तो वो टाइम बहुत सेव हो जाता था। वेरी और गुड. मैंने मार्क करके रख लिया था कि ये क्वेश्चंस थोड़े टफ है, इनको करके देखना होगा, तो वो एग्जाम से पहले करके मैं गई थी। Yes, very well said. Now, Arihant, please you just highlight the fact that how important it is to control your nerves during the 3 hours of your exam, because sometimes there's a professional course, some of the papers come tough in your exam, and because of that students kuch, they sometimes they just lose it, they cannot control their nerves and they just panic at that time. तो आपके भी टाइम कुछ आपको लगा ऐसा पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, बट देन यू रियलाइज दैट यू शुड कंट्रोल योर नर्व्स, बिकॉज अगर ये 3 घंटे में आपने थोड़ी भी नर्वसनेस दिखा दी तो आपका जो है पूरा समझ में आ रहा है, एक अटेम्प्ट दाव पे लग जाएगा. सो व्हाट से यू हैव अबाउट दैट मैटर? Absolutely, ma'am. I remember, especially in SFM the paper, like the MCQs which came out, they were, and which in past year papers, they were actually asked for 6 or 8 marks. So those for 2 marks MCQs, it was like really dreadful because you don't know what to do. Like itni sari calculation करके दो marks के लिए. So what I usually used to do was that I had a set time, that half an hour for MCQs, then remaining half an hour each for one question of 16 marks. That's about it. So I have to stick to that timing. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा. But if I'm not able to do a question, I should move on. Whatever I can write, I'll write. I'll move on to the next question. Because the moment you get stuck in a question and you take it on your ego कि नहीं यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मैं solve करके ही रहूंगा, it really becomes difficult because those 3 hours are very, very limited. Especially in heavy practical papers जैसे CFR and SFM, like you will have to manage your time. Absolutely. And that's what I usually used to do. It's like just set a time for a specific question and attempt that. If you're not able to, fine, I'll move on to the next one. That's it. Very nice. So we are just closing this session today, and definitely I would also like to in future, whenever you guys get the job, whether it is in campus placement or wherever, anywhere, please do share us, okay, so that we can just arrange an interview. Because of these interview, really your juniors are definitely going to get a lot of knowledge, lot of motivation and that boost which they really need at this point of time. I would also like to ask you, क्या आप लोगों ने जब when you were pursuing the course of CMA क्या ऐसे कुछ interview देखा था MEPL में which motivated you? मतलब we have been taking these interview from so many past years, so did you came across any interview that motivated you, that gave you that kick, yes, if they can do it, why not we? यस मैम, मैंने AIR-1 एक बार इंटर में आई थी, पूजा छिटवानी की, उनका इंटरव्यू देखा था। और मेरा कहीं ना कहीं ड्रीम भी ये था कि मोहित सर इंटरव्यू लेते थे ना, तो आई वाज लाइक कभी मेरा भी उनके साथ इंटरव्यू हो। और मुझे ये इंटर में है ना, मैंने काफी मैराथन आपके देखे, मोहित सर के देखे, तो मुझे ये था कि फाइनल में क्लासेस तो मुझे MEPL से ही लेनी है, वो तो श्योर था। तो इसलिए मेरा था कि काश ऐसा भी मौका आए, मेरी रैंक आ जाए और मैं इंटरव्यू दूं। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ MEPL में। Very well, very well. Yes, anyone else? The same situation with me. I also saw Pooja Chotwani's interview only with All India Rank 1 in Inter, and I was like very inspired. Hey, that like she has done it, and it's really amazing. Like, and I really wanted that someday मेरा Mohit sir के साथ interview हो, and वो हुआ भी फिर. In my intermediate, I did end up scoring a rank, and I did amazing teachers and be able to interact with them. So yeah, it's been really amazing. Very well said, Arihant. So any closing tips you guys would like to just give so that it can motivate the others who are watching you right now? मैम मैं बस यही कहूँ कि लाइफ में वो फेज भी आता है जहाँ पे आप ये सोचते हो कि अब नहीं पढ़ाई हो रही, अब बहुत हो गया, लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट दैट टाइम। मतलब यू डोंट हैव टू लूज योर मोरल दैट टाइम। मैंने एक मंत्र सुना था किसी गुरु से, उसमें यही था कि if you have that zeal in your mind and if you have your goals clear, then the major setback cannot influence you. But if you do not have that zeal in your mind, then even the smallest idea can influence you. तो बस यही था कि अगर हमेशा अच्छा सोचो और हमेशा वो जील रखो, तो बड़ी चीजें भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगी। वरना अगर आप ऐसे ही परेशान रहोगे, छोटी छोटी चीजों पे भी आप वो डिमोटिवेट हो जाओगे। और Very काफी well टाइम said, आता Akshita. है Very well said. ऑफलाइन So inspiring. इसमें कि काफी स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हुए थे जब ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे थे। उस टाइम भी हम हमेशा सोचा था और फाइनली हुआ भी कि ऑफलाइन एग्जाम्स हुए,
और सारे स्टूडेंट्स की डिमांड भी होगी। Very nice. Thank you for taking out the precious time and be here today, because you guys have really shared all your valuable insights through which other students are definitely going to feel very motivated, and wish you guys all success ahead in your life. Take care wherever you be. Just do wonders in your life and earn crore and crore of rupees ahead. Thank you all of you for coming and joining us today. Thank you.